بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضور سیدنا غوث اعظم کی زندگی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 دو چشمہ میں ہوئی۔ آپ ہی یہ ابھی کم سن تھے کہ والد بزرگور حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست وصال فرما گئے، اور یوں آپ یہ بچپن میں ہی سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ یہ کی تربیت کی ذمہ داری آپ یہ کے نانا حضرت عبداللہ سومیہ کے کندھوں پر آن پڑی، اور انہوں نے آپ مین کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم بری کے فرزندی حضرت سید عبد الرزاق ملی کا جو اللہ بیان ہے کہ والد بزرگور کو بچپن سے ہی کھیل کود سے نفرت تھی، اور آپ یہ اگر کبھی اللہ کھیل کو ڈال کا ارادہ کرتے تو ندائیگی بھی آتی کہ ہم نے تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اور یوں آپ نے گھبرا کر کھیل کود سے دور ہو جاتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم پیلے نے اپنی زندگی کے ابتدائی 17 برس اپنے آبائی اللہ شہر جیلان میں ہی گزارے، اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ یہ کے دل میں اعلیٰ تعلیم کا شوق بیدار ہوا، اور آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار والدہ ماجدہ اللہ سے کیا، جنہوں نے آپ اللہ کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم بغداد قدامت کے بعد حضرت شیخ حماد بن دباس دبامین کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن کا شمار نابغہ روزگار اولیاء اللہ پیر میں ہوتا تھا، اور بغداد کے قرب واؤ جوار میں ان کا شہرہ تھا۔ بغداد کے بے شمار اولیاء نے انہی سے فیض حاصل کیا تھا۔ آپ مہینہ کا قیام بغداد شریف کے محلہ مظفری میں رہا۔ آپ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت شیخ حماد بن رباس بری کی محفل میں شریک ہو جاتے، اور ان سے روحانی فیوز واؤ برکات حاصل کرتے۔ بغداد میں آپ ہی نے 9 برس تک مختلف علوم پر دسترس حاصل کی، اور اس وقت بغداد میں موجود تمام اکابر علماء اعظام کی صحبتوں سے بھرپور فیض حاصل کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم چند حصول علم کے بعد طریقت کی جانب راغب، آپ کے قلب میں مجاہدہ کی رغبت پیدا ہوئی، اور آپ مالی ہوئے۔ اس دوران آپ کے ہم چنکے حضرت شیخ حماد بن مسلم واؤ باس بیانیہ کی صحبت سے بھی فیض یاب ہو چکے تھے۔ اس اللہ لیے طریقت کے اسرار واؤ رموز سے آگاہ تھے۔ آپ کو یہ روشن ضمیر اور اہل نظر تھے۔ آپ یہ نے قرب ربانی کو پانے کے لیے خود کو مجاہدات کی بھٹی میں جلانا شروع کیا، کیونکہ راہ طریقت کا یہ پہلا اور ضروری قانون ہے۔ آپ اللہ اپنے مجاہدات کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شدائد اگر پہاڑوں پر نازل ہوتے تو وہ بھی پھٹ جاتے۔ آپ نے بغداد شہر کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں رہنا شروع کر دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم پر اللہ نے حضرت ابو سعید مخزومی پر اللہ کے دست نون حق پر بیعت کی، سعادت حاصل کی، اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ پری نے بغداد میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی، اور اس مدرسہ میں آپ یہ بطور مبلغ، مفتی، معلم اور روحانی پیشوا کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ کے خطبات لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتے تھے۔ آپ کے دور میں تمام علماء و فقہا آپ یہ کی عظمت اور علم کے قائل ہو چکے تھے، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ کثیر تعداد میں آپ میاں کی خدمت میں فتاوی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ پر یہ لوگوں کے پیچیدہ مسائل کا فوری شرعی حل انہیں بتا دیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم بوسیلہ کی ازواج مطہرات کی تعداد 4 ہے۔ آپ کی ازواج کے نام ذیل ہیں: حضرت سیدہ بی بی مدینہ، حضرت سیدہ بی بی صادق، حضرت سیدہ بی بی مومنامی لام، حضرت سیدہ بی بی محبوب بچی۔ روایات کے مطابق حضور سیدنا غوث اعظم ملی کی ان چاروں ازواج سے 7 بیٹے اور 22 بیٹیاں تولد ہوئیں۔ آپ اللہ کے بیٹوں کے علاوہ آپ یا اللہ کی بیٹیوں نے بھی تصوف کے میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آپ کی تمام ازواج آپ کا بے حد ادب کرتی تھیں، اور آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھیں۔ آپ علیہ اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھتے، اور اپنے ذمہ ان کے واجب حقوق میں کبھی کوتاہی نہ کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم مال کی عمر مبارک 91 برس ہو چکی تھی۔ آپ یہ نے اپنے گھر والوں کو اپنے وصال کی خبر دی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ پر یہ اپلیل رہنے لگے تھے۔ آپ کی ذات بابرکات کا فیضان جس سے ایک علم سیراب ہوا تھا، اب اس کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ ریال نے اپنے صاحبزادے حضرت سید عبد اللہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں مگر میرا باطن اللہ کے ساتھ ہے، اور اس وقت کچھ لوگ یہاں تشریف لانے والے ہیں، تم ان کے لیے جگہ فراخ کر دو۔
हुजूर सीदना गौस आज़म ने विसाल से कब्ल कलिमा तैबा का वर्द किया और फिर लला अल्लाह की सही पढ़ना शुरू कर दी और इसके साथ ही अपनी जान मालिक हकीकी के सब्र कर दी। आप जब अल्लाह का मज़ार पाक बगदाद शहर के वस्त में वाक़या है और ये वही जगह है जहाँ आपने मदरसा की बुनियाद रखी और दर्स व तदरीस के लिए मसनद इरशाद पर मुतमकन हुए। आप अल्लाह के दरबार से मुल्हक़ाबे शुमार मरीदियन और इरादतमंदों के मज़ारात भी हैं। बेशुमार लोग रोज़ाना आपके मज़ार पाक पर हाजिर होते हैं और रूहानी फीवस व बरक़ात से माला माल होते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी अल्लाह ने हुजूर सीदना गौस आज़म ही की पैदाइश की पेशगोई फरमाई है। एक दिन आप ये मराक़ब में थे। आप अलैहि ने मराक़ब से सर उठाया और फरमाया, मुझे आलम गैब से ये खबर दी गई है कि 5वीं सदी हिजरी के वस्त में एक कुतुब आलम पैदा होगा जिसका लक़ब मुहीउद्दीन होगा और उसका नाम अबद अल क़ादिर होगा। वो गौस ज़मां होगा और हुजूर नबी करीम से काम की औलाद पाक से होगा और वो आइमा अरबिया और सहाबा किराम ने नाम के अलावा सब औलिया अल्लाह के मुतालिक कहेगा कि मेरा कदम उनकी गर्दनों पर है। हुजूर सीदना गौस आज़म फरमाते हैं, 511 दो चश्मे में बरहना पाऊँ बगदाद की जानिब आज़म सफ़र था। रास्ता में मुझे एक बीमार कमज़ोर और मुतगीर रंग वाला शख्स मिला। जब मैं उसके नज़दीक आया तो इसने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा और मुझे सलाम किया। जब मैं उसके मज़ीद नज़दीक पहुंचा तो इसने मुझसे कहा कि मुझे सहारा दो। चुनाचे मैंने उसे सहारा दिया और देखते ही देखते वो तंदुरुस्त व तवाना हो गया और इसका चेहरा तरोताज़ा हो गया। मैंने ये मंजर देखा तो घबरा गया। इसने मुझसे कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं। हुजूर सीदना गौस आज़म फरमाते हैं, उस शख्स की बात सुनकर मेरे चेहरे पर इत्मीनान की कैफियत तारी हुई। फिर इसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने इनकार कर दिया तो उसने कहा, मैं दीन इस्लाम हूँ और मैं करीब अलमरत था। अल्लाह इज़्वाजल ने मुझे तुम्हारे ज़रिए दोबारा से जिंदा कर दिया है। हुजूर सीदना गौस आज़म ये फरमाते हैं कि फिर इस शख्स से रुखसत होने के बाद में बगदाद पहुंचा और जामा मस्जिद में नमाज की गर्ज से दाखिल हुआ। अभी मैं जामा मस्जिद के दरवाजे में ही था कि एक शख्स आगे बढ़ा और इसने मेरे जूते पकड़कर मुझे या सीदी मुहीउद्दीन कहकर पुकारा। फिर जब मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ तो चारों जानिब से लोग आकर मेरे हाथ चूमने लगे और मुझे या मुहीउद्दीन कहकर पुकारने लगे। हुजूर सीदना गौस आज़म अलैहि फरमाते हैं, इस लक़ब से इस दिन से कब्ल मुझे कभी किसी ने नहीं पुकारा था। रिवायात में आता है, जिस शब हुजूर सीदना गौस आज़म पर ये पैदा हुए, इस अल्लाह रात आप अल्लाह के वालिद बुजुर्गोर हज़रत सैयद अब्बू सालेह मूसा जंगी दोस्त को ख्वाब में हुजूर नबी करीम से कम की ज़ियारत बा सादत नसीब हुई। हुजूर नबी करीम ये को कम अपने सहाबा किराम मन इन्हें हम और औलिया अल्लाह ही के हमराह तशरीफ़ लाए और आपको बशारत दी, ए अब्बू सालेह, अल्लाह अज़्ज़वजल ने तुम्हें ऐसा फर्जंदी अता फरमाया है जो वली अल्लाह है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा और अल्लाह का हजूब है और अनकरीब इसकी औलिया अल्लाह में वो शान होगी जो अनबिया किराम अलीम में मेरी शान है। हुजूर बदना गौस आज़म अल्लाह मादर ज़ात वली अल्लाह थे। आप मन अल्लाह की वालिदा फरमाती हैं कि आपकी विलादत रमज़ान उल मुबारक के मुक़द्दस और पाकीज़ा महीने में हुई और आप पर ये दिन भर दूध ना पीते थे। विलादत बा सादत के दूसरे सहाल मौसम अबर आलूद होने की वजह से लोगों को रमज़ान का चांद दिखाई ना दिया। लोगों ने मेरे पास आकर दरियाफ्त किया कि क्या अबद अल क़ादिर अली ने दूध पिया है या नहीं। हुजूर सीदना गौस आज़म की वालिदा फरमाती हैं, मैंने कहा, आज मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया। फिर इसकी तस्दीक हो गई कि इस दिन माह रमज़ान उल मुबारक की पहली तारीख थी, यानी इस दिन पहला रोज़ा था। इस वाक़या है तमाम शहर में ये मशहूर हो गया कि सादात के घराने में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ है जो रमज़ान उल मुबारक में दिन के वक्त दूध नहीं पीता। हुजूर सीदना गौस आज़म बे की वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि आपका तमाम रमज़ान उल मुबारक में यही मामूल रहा कि सारा साल आप ये दूध पिया करते थे, मगर जून ही रमज़ान उल मुबारक शुरू हो जाता आप ये दूध पीना तर्क कर देते थे। यानी रमज़ान उल मुबारक का महीना शुरू होते ही आप वक्त तुलू आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कता दूध ना पीते थे। ख्वाह कितनी ही दूध पिलाने की कोशिश की जाती और आप अल्लाह रमज़ान उल मुबारक के पूरे महीने में दिन के वक्त रोज़े से रहते थे और जब मगरिब के वक्त अजान होती और लोग इफ्तार करते तो आप ये भी उस वक्त दूध पिया करते थे।
रिवायात में आता है कि हुजूर सीदना गौस आज़म ये जब पढ़ने के लायक रहमत अल्लाह हुए तो आपको कुरान मजीद की तालीम के लिए एक मदरसे में ले जाया गया ताकि आप अल्लाह कुरान मजीद हिफ्ज़ करें। जब आप अपने उस्ताद के सामने दो जानू होकर बैठ गए तो उस्ताद ने कहा, पढ़ो बेटे बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आपने बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ने के साथ साथ अलम से लेकर मुकम्मल 18 सपारे ज़बानी सुना दिए। आप ये कि उस्ताद ने हैरानगी से पूछा कि तुमने ये कब पढ़े और कैसे वक्फ ताम हिफ्ज़ किए। आपने फरमाया कि मेरी वालिदा माजिदा को ये 18 सपारे याद हैं और वो उनको अक्सर पढ़ा करती थीं। जब मैं शकम मादर में था चनाना ये 18 सपारे बारहा सुनते सुनते मुझे याद हो गए थे। मनकूल है हुजूर सीदना गौस आज़म 18 बरस की उम्र में वालिदा माजिदा की इजाज़त से मज़ीद तालीम के लिए बगदाद रवाना हुए। आप ये फरमाते हैं, जब मैं बगदाद के लिए रवाना होने लगा तो वालिदा माजिदा ने मुझसे फरमाया कि तुम्हारे वालिद ने तरका में इस दीनार छोड़े थे, 40 दीनार तुम्हारे भाई के लिए हैं और 40 दीनार तुम्हारे हैं। तुम्हारे दीनार में ने तुम्हारी कमीज के अंदर सी दे हैं। मैंने वालिदा माजिदा से नसीहत की दरख्वास्त की तो इन्होंने फरमाया, अल्लाह इस वाउजल के इकामात की पाबंदी करना, हराम से परहेज करना, तकदीर खदानदे पर राजी रहना और ख्वार कैसे भी हालात हों झूठ ना बोलना। हुजूर सीदना गौस आज़म अलैहि फरमाते हैं, मेरी वालिदा इस बात को जानती थीं कि बगदाद मेरे लिए एक नया शहर है और वहाँ मेरा कोई दोस्त साथी या गमखार मौजूद नहीं है, इसलिए इन्होंने एक सरदार लेने के बाद मुझे अल्लाह के सुपरद किया। मैं बगदाद जाने के लिए एक काफिला में शामिल हो गए। जब ये काफिला शहर की हुदूद से बाहर निकला तो रास्ता में 7 लुटेरों ने काफिले पर हमला कर दिया और काफिले का तमाम माल व असबाब लौट लिया। लौट मार के दौरान एक शख्स मेरे पास आया और पूछा, ए लड़के तेरे पास किया है? मैंने कहा, मेरे पास 40 दीनार हैं। वो शख्स मेरी बात को मजाक सुनकर आगे बढ़ गया। इसके बाद एक और शख्स मेरे पास आया और उसने भी मुझसे यही पूछा और मैंने उसे भी यही बताया कि मेरे पास 40 दीनार हैं। वो भी मेरी बात का मजाक उड़ाकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद ये दोनों लुटेरे अपने सरदार के पास गए और अलिफ और उसे मेरी बात बताई। इसके माँ बात बताई। इस सरदार ने मुझे बुलाया और दरियाफ्त किया कि क्या वाकई तुम्हारे पास 40 दीनार हैं? मैंने इसे बताया, हाँ मेरी बगल के नीचे सले हुए हैं। सरदार ने कमीज को अधेड़ कर देखा तो इसमें से 40 दीनार बरामद हो गए। वो बरदार हैरान हुआ और इसने मुझसे कहा कि तुमने इसे राज क्यों न रखा? तुम्हें सच बताने की क्या जरूरत थी? मैंने जवाब दिया, मेरी वालिदा ने सफर पर निकलते वक्त इस बात की नसीहत की थी कि बेटा जैसे भी हालात हूँ तुम झूठ ना बोलना। लिहाजा जब मुझसे पूछा गया मेरे पास किया है तो मैंने सच सच बता दिया। हुजूर सीदना गौस आज़म पर ये फरमाते हैं कि मेरी बात सुनकर इस सरदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने एक आह भरते हुए कहा कि तुमने अपनी वालिदा का अहद नहीं तोड़ा और एक में हूँ जो साल से रब के अहद को तोड़ रहा हूँ और लोगों को लौट रहा हूँ। ये कहकर वो सरदार मेज ने कदमों में गिर पड़ा और तौबा करने के बाद तमाम माल व असबाब काफिले वालों को वापस कर दिया। ये पहला मौका था जब किसी शख्स ने मेरे दश्त मुबारक पर तौबा की। बगदाद में दौराने तालीम बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुजूर सीदना गौस आज़म या अल्लाह ने 9 बरस तक बगदाद में इल्म हासिल किया। इस दौरान आप अल्लाह सख्त मुजाहिदे भी करते रहे। वालिदा माजिदा ने जो 40 दीनार आप अल्लाह को दिए थे वो जल्द ही ख़त्म हो गए। आपको अल्लाह को गुज़र औक़ात के लिए वक्फ ताम बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर इससे आप अल्लाह की इस्तिकामत में किसी कस्म का कोई फ़र्क न आया। हज़रत शेख तलहा बिन मुज़फ़्फ़र अल्लाह से मनक़ूल है, फरमाते हैं कि हुजूर सीदना गौस आज़म ने मुझे बताया कि बगदाद में क़याम के दौरान अक्सर व बेशतर मुझे खाने को कुछ ना मिलता था, हत्ता कि एक मरतबा में है रोज़ तक फाक़े से रहा तो मैं ऐवान कसरी की जानिब चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर देखा कि 40 औलिया अल्लाह मुझसे पहले वहाँ मौजूद थे। मुझे ये देखकर बहुत शर्मिंदगी हुई और मैं वापस हो लिया। हुजूर सीदना गौस आज़म पर अल्लाह ने फरमाया, इस दौरान मेरी मुलाकात अपने एक हम वतन से हुई। इसने मुझे कुछ रकम देते हुए कहा कि ये मेरी वालिदा माजिदा ने दी है। मैं उस शख्स को जानता भी ना था। मैंने वो रकम ली और वापस उन औलिया के पास आया और उनमें रकम तकसीम की और बकदर ज़रूरत खुद भी रख ली।
इन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया, ये रकम कहाँ से आई? हुजूर सीदना गौस आजम अलैहि फरमाते हैं, मैंने इन्हें बताया ये रकम मेरी वालिदा ने भेजी है और मुझे ये अच्छा ना लगा कि मैं ये सारी रकम खुद रख लेता। फिर मैंने बगदाद वापस आकर बाकी मानदा रकम से खाना खरीदा और फुकरा को बल्ला अपने साथ बिठाया और हमने खाना तनावल फरमाया। हजरत शेख अबद अल्लाह सलमी अल्लाह से मनकूल है, फरमाते हैं कि मुझे हुजूर सीदना गौस आजम की सोबत में रहने का मौका मिला। आपको अल्लाह ने एक मर्तबा बताया कि मैं कई रोज से फाक़े था और भूख की शिद्दत ने जब मुझे ज्यादा बेचैन किया तो मैं मोहल्ला कतिया शर्किया में जा निकला, जहाँ एक शख्स ने मुझे कागज की बंदी हुई एक पुड़िया दी और चला गया। मैंने इस पुड़िया के अंदर मौजूद रकम से हलवा खरीदा और मस्जिद में जा बैठा। मैं क़िबला रो बैठा ये सोच रहा था कि मुझे इस हलवा को खाना चाहिए या नहीं। इस दौरान मेरी नज़र एक का क़ज़ा पर पड़ी। मैंने इसका क़ज़ा को उठाकर देखा, इसमें तहरीर था कि हमने कमज़ोर मोमिनीन के लिए रिज़्क़ की ख्वाहिश पैदा की ताकि वो बंदगी के लिए इसके ज़रिया क़ुव्वत पाएं। मैंने जब ये इबारत पढ़ी तो मेरे बदन पर पैपसी तोए या तो मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई और खौफ खदांदे से मेरे बदन के तमाम बाल खड़े हो गए। मैंने इस हलवा के नीचे से अपना रुमाल निकाला और उसे वहीं छोड़कर मस्जिद में 2 रकत नमाज अदा करके वापस आ गया। हुजूर सीदना गौस आजम अल्लाह का एहसार ज़रत अबू बकर तमीमी से मरुए है, फरमाते हैं कि हुजूर सीदना गौस अबू बकर मी आज़म पर ने एक मर्तबा बताया कि बगदाद में सख्त कहत पड़ा और खा रखाने को कुछ मैसर न था। मुझे भी फाक़े रहते कई दिन गुजर चुके थे। एक रोज जब भूख का गलबा कुछ ज्यादा हुआ तो मैं दरियाए दजला पर चला गया ताकि अगर कुछ घास या पत्ते मिले तो खा कर गुजारा कर लूं, मगर वहाँ पहले ही बहुत से लोग मौजूद थे और वो भी मेरी तरह खाने की तलाश में थे। बिलाखिर में शहर की जानिब वापस लौट आया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एक नौजवान भना हुआ गोश्त लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ और खाने बैठ गया। मैं भूख से इस कदर निढाल था कि जब वो लुक़मा अपने मुंह में डालता तो मैं अपना मुंह खोल लेता, हत्ता कि मैंने खुद को मलामत करने को कहा कि ये क्या हरकत है। अल्लाह अज़्ज़वजल मेरे हाल से वाकिफ है, उसी पर तवक्कल कर और इस कदर बेसब्राना हो। हुजूर सीदना गौस आज़म सैयद ने फरमाया। फिर वो नौजवान मेरी जानिब मुतवज्जह हुआ और कहने लगा कि आप मेरे साथ खाने में शामिल हो जाए। मैंने इनकार कर दिया और जब उसने बहुत ज्यादा इसरार किया तो मैं इसके साथ खाने में शरीक हो गया। इस नौजवान ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ। मैंने इसे बताया कि मैं फ़िक़्ह का तालिब इल्म हूँ और जीलान का रहने वाला हूँ। इसने मुझसे पूछा कि क्या तुम जीलान के एक शख्स अब्द अल क़ादिर अल्लाह को जानते हो? मैंने इसे बताया वो मैं ही हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और कहने लगा कि मुझे जीलान से दाल हमद अल्लाह आपकी वालिदा ने 8 दीनार देकर भेजा था। मैं आप को तलाश करता रहा, यहाँ तक कि मेरे पास मौजूद रकम भी ख़त्म हो गई और फाकों की नौबत आ गई। मैंने भूख से निढाल 3 दिन गुजार दिए। फिर मुझे ख्याल आया कि फाका की हालत में तीसरे दिन तो मर्दार खाने की भी इजाज़त है, इसलिए मैंने अमानत में से ये खाना खरीदा था। ये खाना आप बोल की मलकियत है और मैं आप ये से माफ़ी चाहता हूँ। बेअबद अल्लाह। हुजूर सीदना गौस आज़म बरीद वस आज़म पी ने फरमाया, मैंने उस शख्स को तसल्ली दी कि फिक्र की कोई बात नहीं और फिर हम दोनों ने मिलकर वो खाना खाया। एक गौस की पेशगोई शेख अब्बू सईद अब्दुल्ला मोहम्मद से मनकूल है, फरमाते हैं मैं इब्न अल-बका और हुजूर सीदना गौस आज़म से जामिया निज़ामी बगदाद में ज़ेर तालीम थे। उस ज़माने में बगदाद में एक शख्स बहुत मशहूर था और सब इसको गौस कहते थे। वो जब चाहता ज़ाहिर हो जाता और जब चाहता गायब हो जाता था। एक रोज़ हम तीनों दोस्तों ने इस बात का इरादा किया कि उनसे मिला जाए। जब हम रवाना हुए तो इब्न अल-सिका ने कहा कि मैं इस गौस से ऐसा मसला पूछूंगा कि वो लाजवाब हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं भी एक सवाल करूंगा, देखता हूँ वो क्या जवाब देते हैं। हुजूर सीदना गौस आज़म री ने फरमाया कि मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ उनकी ज़ियारत की सादत हासिल करूंगा। शेख अबू सईद अब्दुल्ला मोहम्मद फरमाते हैं, जब हम वहां पहुंचे तो वो मौजूद न थे। थोड़ी देर बाद वो जाहिर हुए और इब्न अलका से कहने लगे, ए इब्न अलका, तुझ पर सद अफसोस है, तो मुझसे अपना सवाल पूछना चाहता था जिससे तो मुझे ला जवाब कर देने। तुम्हारा सवाल ये था और इसका जवाब ये है। और इन्होंने इब्न अल-सिका के बताए बगैर उसके सवाल का जवाब दे दिया।
और फिर फरमाया मुझे तेरे अंदर कफर नजर आता है। फिर इन्होंने जाने मेरी जानिब निगाह की और फरमाया कि तुम्हारा सवाल ये है और इसका जवाब ये है और तुम्हारी इस बेअदबी की वजह से दुनिया तुम्हारे कानों तक छा जाएगी। फिर वो हुजूर सीदना गौस आजम की जानिब मुतवज्जह हुए और उनको अपने पास बल्ला कर बिठाया और उनके हम्मत अल्लाह साथ निहायत इज्जत व एहतराम से पेश आए और फरमाया, ऐ अबद अल कादिर, तूने अपने अदब की बदौलत अल्लाह और इसके रसूल से अवाम को राजी कर लिया। तुम अनकरीब एक मिंबर पर बैठोगे और सारा बगदाद तुम्हारी बात सुनेगा। तुम ऐलान करोगे कि हर वली की गर्दन पर मेरा कदम है और मुझे नजर आ रहा है कि तमाम वली अल्लाह तुम्हारी इस बात पर अपना सर झुका देंगे। शेख अब्बू सईद अबद अल्लाह मोहम्मद अल्लाह फरमाते हैं, इसके बाद वो गौस गायब हो गए और हमारी उनसे फिर कभी कोई मुलाकात न हुई। जिस वक्त हुजूर सीदना गौस आजम मिंबर वलायत पर बैठे और आप ये ने ऐलान किया कि तमाम औलिया की गर्दनों पर मेरा पाँव है, खाक पाए तो बूद रोशनी हल नजर देदहरा बख्श ज़िया हजरत गौस अल-सकलीन शेख अब्बू सईद अबद अल्लाह मोहम्मद भी फरमाते हैं, इब्न अल-सिका का ये हाल था कि इसने शरी उलूम पर दस्तरस हासिल की और हर एक को अपने इल्म से मात दी, मगर जब खलीफा ने उसे अपना मकरब खास बनाकर शाहरूम की जानिब भेजा तो उसने शाहरूम के तमाम ईसाई पादरियों को मात दे दी। शाहरूम ने उसकी निहायत इज्जत की और उसे अपना मकरब खास बना लिया। वहाँ इब्न अल-सिका एक लड़की पर फरीफता हवा और उसने शाहरूम है इसका रिश्ता मांगा। शाहरूम ने कहा कि उसका रिश्ता में एक शर्त पर्दों का, जब तो ईसाई होगा। इब्न अल-सिका ने इस लड़की से शादी की, गर्ज से ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। मुझे जब इल्म हुआ तो मुझे इन गौस का कौल याद आ गया। शेख अब्बू सईद अब्दुल्लाह मोहम्मद अलैहि फरमाते हैं, मेरी हालत ये हुई कि मैं बगदाद से दमिश्क आया तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मुल्क शहीद ने मुझे महकमा औकात का नाज़िम अल-आला मुकर्रर कर दिया। मैं हाकिम हो गया और दुनिया चारों जानिब से मुझ पर टूट पड़ी। इस गौस की कही हुई तीनों बातें दुरुस्त साबित हुई। हर वली की निगाहें तेरे मकाम पर हैं। हुजूर सीदना गौस आजम अलैहि फरमाते हैं, पहली मर्तबा जिद हम अल्लाह मुझे हज बीत अल्लाह की सादत नसीब हुई। मैं हरम पाक की जानिब आजम सफ़र हुआ। जब मैं मनारा में अल-क़रून जो मक्का मुकर्रमा के नज़दीक एक मकाम है वहाँ पहुँचा तो मेरी मुलाकात हज़रत शेख इदी बिन मुसाफिर बरेली से हुई। वो उस वक्त आलम शबाब में थे। इन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं हज बीत अल्लाह शरीफ की नीयत से जा रहा हूँ। इन्होंने पूछा कि क्या हम दोनों साथी बे नून सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं, ऐसा मुमकिन है। हुजूर सीदना गौस आजम फरमाते हैं कि फिर हम दोनों ने इकट्ठे सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में हमें एक हबशी लड़की मिली जिसके चेहरे पर निकाब था। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो? मैंने कहा कि मैं मजम का रहने वाला हूँ और बगदाद से आ रहा हूँ। इस लड़की ने कहा मैं हबशा में थी। जब मैंने देखा अल्लाह इस वजल ने तेरे दिल पर बिजली की और जहाँ तक मुझे मालूम है अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपने वसील से तुझे वो कुछ अता किया है जो किसी को नहीं किया। पस मैंने चाहा कि मैं तुझे देखूं। फिर कहने लगी आज मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी और शाम को रोज़ा भी तुम्हारे साथ इफ्तार करूंगी। फिर वो रास्ते के एक तरफ और हम दूसरी तरफ चलना शुरू हो गए। हुजूर सीदना गौस आजम ये फरमाते हैं, शाम को जब इफ्तारी का वक्त हुआ, वक्फ ताम, तो आसमान से हमारे लिए एक तिब्बाक उतरा जिसमें कुछ रोटियां, सरका और तरकारी थी। इस हबशी लड़की ने खाना देखते हुए फरमाया, सब तारीफ अल्लाह इस वाउ जल के लिए है, उसने मेरे मेहमानों को इज्जत बख्शी। हर रात मेरे लिए 2 रोटियां उतरा करती थीं। आज मेरे मेहमान साथ हैं तो 6 रोटियां उतरी हैं। हुजूर सीदना गौस आजम अलैहि फरमाते हैं, हम तीनों ने इसमें से 2-2 रोटियां खाएं। फिर पानी के 3 कौजे उतरे और हमने इसमें से पानी पिया। इसके बाद वो हबशी लड़की हमसे रुखसत हो गई। हम दोनों जब मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो तवाफ की गर्ज से बीत अल्लाह शरीफ तशरीफ ले गए। हजरत शेख इदी बिन मुसाफिर पर अनवार वाव तजलियात की बारिश हुई और वो बेहोश हो गए। देखने से यही गुमान होता था कि वो विसाल फरमा गए हैं। इस दौरान वही हबशी लड़की आई और उसने उनके सर पर बोसा देते हुए कहा कि तुझे वही जिंदा करेगा जिसने तुझे मारा है। पाक है वो जात का हादिस चीजें बजस उसके बरकरार रखने के उसके जलाली नूर की तजली के आगे कायम नहीं रह सकती, बल्कि इसके जलाल के अनवार ने
अंधों की आंखें भी चंदी कर रख दी हैं। हुजूर सीदना गौस आजम ये फरमाते हैं, फिर दौरान तवाफ मुझ पर भी अनवार वाव तजलियात की बारिश हुई। मैंने अपने बातिन का खिताब सुना जिसके अल्फाज थे, ऐबद अल कादिर भी अलिफ जाहिर छोड़े और तवहीद तजरीद और तवहीद तफरीद इख्तियार कर अनकरीब हम तुम्हें अपनी बेशुमार निशानियां दिखाएंगे। तो अपनी मुराद को गलत ना कर और अपने कदम को साबित रख और दुनिया में हमारे सिवा किसी को मालिक ना समझ। लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मसनद इरशाद पर बैठ हुजूर सीदना गौस आजम ये फरमाते हैं। इसके बाद वो हबशी लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, दमे जवान, मुझे तेरा मकाम मालूम है, तुझ पर नूर का खैमा लगा हुआ है और आसमान तक तुझे फरिश्तों ने घेर रखा है और हर वली की निगाहें तेरे मकाम पर हैं और उनकी आरज़ू है कि तेरे जैसी नेमत इन्हें भी हासिल हो जाए। अबद अल कादिर देवाना हजरत शेख अब्बू अबद अल्लाह जहाई पर ये कहते हैं कि मुझसे हुजूर सीदना गौस आजम ने फरमाया कि एक रात मुझ पर खास वजदानी कैफियत तारी हुई। मैंने बेसाख्ता शेख मारी जिससे लुटेरों की जमात घबरा कर भाग गई कि शायद कोई आ गया है। जब वो लोग मेरे पास आए और मुझे जमीन पर बेहोश पड़ा देखा तो कहने लगे, ये तो अबद अल कादिर ऐन दीदा है, इसने हमें डरा दिया, नफ्स के बहकावे में ना आए। हजरत शेख अब्बू अल अब्बास अहमद बिन बेची बगदादी अलैहि फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सीदना गौस आजम पी से सुना, आप ये ने फरमाया कि मैं ने 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की और 15 बरस तक एक पांव पर खड़े होकर सुबह तक कुरान मजीद खत्म किया। एक रात में एक सीढ़ी पर चढ़ रहा था कि मेरे नफ्स ने मुझसे कहा, काश तो एक घड़ी हो जाए और फिर उठकर इबादत करने। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिल में आया, मैं वहीं एक पांव पर खड़ा हो गया और कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी, यहाँ तक कि मैंने उसी हालत में कुरान मजीद खत्म किया। रब ताला का खुसूसी फजल व करम हुजूर सीदना गौस आजम पीने के साहिबजादे हजरत शेख ज़ियाउद्दीन अब्बू नसर मूसा अल्लाह से मरुए है। फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद माजिद से सुना कि दौराने सियाहत में एक लिख वाव दिख सहरा में जा निकला जहाँ पानी का कोई नाम वाव निशान ना था। मैं कई रोज तक वहाँ भूखा प्यासा पड़ा रहा। एक दिन बादल आए और बारिश की कुछ बूंदें मुझ पर गिरीं, जिससे मैं सैराब हुआ। अफल मैंने एक नूर को देखा जिससे आसमान का किनारा रोशन था। इस नूर से एक शक्ल नमूदार हुई, इसने मुझे पुकारा, ऐबद अल कादिर अली, मैं तेरा रब हूँ और तेरे ऊपर हराम तमाम अशिया को हलाल करता हूँ। हजरत शेख ज़ियाउद्दीन अबू नसर मूसा अलैहि फरमाते हैं कि आपने ये सुनते ही तूज़ पढ़नी शुरू कर दी, जिससे वो नूर गायब हो गया और इसने दुआ की शक्ल इख्तियार कर ली और कहने लगा, ऐबद अल कादिर, ही ना तुमने अल्लाह इस वजल के हुक्म से और अपने इल्म के जरिए मेरे मुकर से निजात पाली और ना मैं अपने उस मुकर से 70 अहल तरीक़त को गुमराह कर चुका हूँ। हजरत की ज़ियाउद्दीन अब्बू नसर मूसा ये फरमाते हैं, आप माने फरमाया, ये मेरे रब ताला का मुझ पर खास फजल व करम है। हजरत शेख ज़ियाउद्दीन अब्बू नसर मूसा ये फरमाते हैं, लोगों ने आप ये ने पूछा कि आप ही को कैसे मालूम हुआ कि वो शैतान है। आपने फरमाया, शैतान के उसके कौल है कि मैं हराम अशिया को हलाल करता हूँ। मुझे मालूम है अल्लाह इस वाव जल कभी भी बुरी चीज़ का हुक्म नहीं देता और जो चीज़ शरीयत मोहम्मद ये से काम में हराम है, इसे सिर्फ मेरे लिए ही हलाल कैसे किया जा सकता है। शैतान को भगाना। अद हजरत शेख मेरी अल्लाह से मनकूल है कि हुजूर सीदना गौस आजम अलैहि ने फरमाया कि मैं जब बगदाद छोड़कर बयाबानों में रहने लगा तो शैतान इंसानी शक्लों में आते और वो हर कस्म के असलिहा से लेस होते थे। वो मुझसे जंग करते और मुझ पर आग के शोले बरसाते थे। मैंने अपने दिल में उनसे लड़ने के लिए हौसला, हिम्मत और जुरत पाई और हर मैदान में साबित कदमी का मुजाहिरा किया। हातफ गीबी से मेरे लिए निदा आती, ऐबद अल कादिर अली, उठो और उनका मुकाबला करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चुनांचे जब मैं उनका मुकाबला करता तो वो फरार हो जाते थे। एक शैतान ने मुझसे कहा कि ये जगह छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। मैंने आगे बढ़कर इसके मुंह पर तमांचा रसीद किया, जिससे वो उल्टे पांव भाग गया। मैं ला हौल वला क़ुव्वत पढ़ता और शैतान जलकर राख हो जाते थे। हुजूर सीदना गौस आजम ये फरमाते हैं, एक दिन एक निहायत बदसूरत शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं अहले हूँ, आप ये ने मुझे और मीर ने गिरोह को तंग कर दिया है। मैंने उसे जवाब दिया तो यहाँ से दूर हो जा। फिर अचानक एक गीबी हाथ नमूदार हवा और उसने इसके सर पर ज़रबे लगाकर इस जमीन के अंदर धंसा दिया।
وہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں بھڑکتے ہوئے شعلے تھے۔ وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دوران ایک نقاب پوش گھوڑ سوار آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں تلوار دی۔ شیطان نے وہ تلوار دیکھی تو الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت شیخ ابو العباس منہ سے مروئے ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پینے نے فرمایا کہ میں بروج مجھی میں گر میں گیا، رہ برس رہا اور میں نے اللہ عز و جل سے عہد کیا جب تک تو میرے منہ میں لقمہ نہ دے گا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، اور جب تک تو مجھے پانی نہیں پلائے گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ چنانچہ میں نے 40 روز تک کچھ نہ کھایا پیا۔ اس کے بعد ایک شخص میرے لیے کھانا لایا۔ میں بھوک کی شدت سے کھانا ہی چاہتا تھا کہ میرے دل سے آواز آئی کہ تو اللہ سے کیا گیا اپنا وعدہ توڑنا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس دوران میرے نفس نے چلانا شروع کر دیا، ہائے بھوک، لیکن میں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اس دوران حضرت شیخ ابو سعید محرومی پیسے آئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حالت بیداری میں حضور نبی کریم سے کی زیارت با سعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم سے تم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے تم وضع نصیحت کروں۔ میں نے عرض کیا میں اجمی ہوں اور علماء بغداد کے سامنے تقریر کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم سے کام نے مجھے منہ کھولنے کا حکم دیا، اور جب میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ سے کام نے 7 مرتبہ میرے منہ میں تھوکا اور فرمایا کہ اب تم وضع کرو اور لوگوں کو حق کی دعوت دو۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی علی اللہ تشریف لائے۔ آپ علیہ نے مجھے فرمایا، بیٹے اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ بھی لیے نے 6 مرتبہ میرے منہ میں تھوکا اور فرمایا کہ وضع و نصیحت کرو۔ میں نے دریافت کیا، آپ دل اللہ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ تھوکا، جبکہ حضور نبی کریم سے ہم نے 7 مرتبہ تھوکا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی دلیا نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم سے کام کے ادب کی وجہ سے ایسا کیا۔ پھر حضور نبی کریم سے پانے مجھے خلعت پہنائی اور فرمایا ہے، یہ تمہاری ولایت کی خلعت ہے اور یہ عقتاب اولیاء کے لیے مخصوص ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم ہی یہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد اللہ عز و جل نے مجھ پر اپنے بے پناہ فیض و برکات نازل فرمائے اور میری زبان میں تاثیر عطا فرمائی۔ میں جس شخص کو بھی دعوت حق دیتا وہ میری دعوت کو رد نہ کرتا اور میرے وضع میں لوگوں کا ایک ہجوم موجود رہتا۔ اس واقعہ سے قبل میری محفل میں صرف چند لوگ بیٹھا کرتے تھے، بعد ازاں قطب، ابدال، ملائکہ، جن و انس بڑی تعداد میں میرے وضع میں شامل ہونے لگے۔ آواز نزدیک اور دور سب کے لیے یکساں ہوتی تھی۔ نقل منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا تھا، مگر آپ ہی کی آواز نزدیک اور دور سب کے لیے یکساں ہوتی تھی۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ہی کی محفل اللہ میں انبیاء کرام نیم، اولیاء اللہ پیر کے علاوہ جن وانس، ملائکہ وغیرہ حاضر ہوتے اور حضرت خضر علی نام باقاعدگی سے آپ ہی کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔ لوگوں کو اللہ کے لیے جمع کرنا۔ سروایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم سیدہ کی محفل لگی ہوئی تھی اور بے شمار لوگ محفل میں موجود تھے۔ اس دوران بارش شروع ہو گئی۔ آپ اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، الہی میں تیرے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو منتشر کرتا ہے۔ آپ اللہ کا یہ فرمانا تھا کہ بارش رک گئی۔ بے مثال صبر۔ حضرت احمد بن مبارک پیدا فرماتے ہیں کہ ابھی نامی ایک اجمی شخص حضور سیدنا غوث اعظم بے سے تعلیم حاصل کرتا تھا، مگر وہ اتنا کند ذہن تھا کہ بہت مشکل سے اس کی سمجھ میں کوئی بات آتی تھی۔ اس کے باوجود آپ یہ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اسے پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن دوران سبق ابن سمول آپ اللہ کی زیارت کو حاضر ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں نے اس بے مثال صبر پر آپ سے حیرانگی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مشقت میرے لیے صرف 1 ہفتہ کی ہے، اس کے بعد اللہ عز و جل اپنا فضل فرمائے گا۔ ابن سمول نے آپ پر اللہ کے فرمان کے مطابق دن گننا شروع کر دیے۔ ہفتے کے آخری روز اس کا انتقال ہو گیا۔ ابن سمول اس بات پر حیران تھے کہ آپ ہی کو اس کے انتقال کی خبر 1 ہفتہ قبل ہی ہو چکی تھی۔ سینہ مبارک سے نور کا ظاہر ہونا۔ حضرت مفرج بن نبہان واو اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب حضور سیدنا غوث اعظم علیہ کی شہرت عام ہوئی تو بغداد کے قریباً 100 فقی آپ اللہ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئے تاکہ وہ علیحدہ مسئلہ دریافت کریں اور آپ یہ کہ علم کا امتحان لیں۔
آپ نے ان کی آمد کے بعد سر جھکا لیا۔ اس وقت آپ کے سینہ مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا جس کا مشاہدہ اہل کشف نے کیا۔ پھر وہ نور ان 100 فقہا کے سینوں میں گزرتا چلا گیا جس کی وجہ سے ان پر خونی طاری ہو گیا۔ انہوں نے پیچشی مارتے ہوئے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے، پھر آپ کے قدموں میں سر رکھ کر معافی کے طلبگار ہوئے۔ اس دوران اہل محفل نے بھی ایسی زوردار چیخ ماری کہ سارا بغداد لرز اٹھا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ان فقہا کو اٹھایا اور فرمایا کہ تمہارے سوال یہ تھے اور ان کے جوابات یہ ہیں۔ خلت خاص عطا ہونا۔ حضور سیدنا غوث اعظم یہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسند ارشاد پر بیٹھا ہوا تھا، حضور نبی کریم سے علم کی زیارت با سعادت نصیب ہوئی۔ آپ سے کم کے ہمراہ حضرت موسیٰ علیہ نام بھی تھے۔ حضور نبی کریم سے عوام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے وہ دریافت کیا کہ کیا آپ علیہ السلام کی امت میں ایسا کوئی شخص ہے؟ حضرت یہ موسیٰ علیہ السلام نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر حضور نبی کریم سنے کو تم نے مجھے خلت خاص عطا فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم اللہ کے فرزندی حضرت سیدنا عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ یہ سفر حج پر تشریف لے گئے، خادمین کی ایک کثیر جماعت بھی آپ یہ کے ہمراہ تھی۔ آپ یہ راستہ میں موضع اللہ نزد بگت اد پہنچے تو آپ یہ نے خدام کو حکم دیا کہ اس بستی میں جا کر سب سے زیادہ مفلس اور نادار گھر کو تلاش کرو۔ خدام نے تلاش شروع کی تو انہیں ایک بوڑھے اور محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ یہ کو جب اطلاع دی گئی تو آپ اس گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ اللہ کے خدام بھی ہمراہ تھے۔ آپ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہل علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے جنہیں آپ نے ان بوڑھے میاں بیوی اور ان کی بیٹی کو دے دیا اور وہ نادار آپ کی برکت سے مالا مال ہو گئے۔ مشید خداندے پر راضی رہنا۔ حضرت ابن انجار بغدادی کا بیان ہے، حضرت عبد اللہ بن حسین واللہ نے میری جانب خط لکھا جس میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ حضور سیدنا غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو میں اسے گود میں اٹھا کر کہتا کہ یہ مشید خداندی ہے، بس جب کوئی بچہ مرتا تو مجھ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا کیونکہ میں نے ابتدا میں ہی اپنی حجت کو باہر نکال دیا تھا۔ آپ یہ کہ کئی بچے آپ یہ کہ وضع کے دوران فوت ہوئے، مگر آپ اللہ نے وضع سے فارغ ہونے کے بعد ہی ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم سید کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے مسلی کے نیچے جو کچھ غیب سے آتا اس کو ہاتھ نہ لگاتے بلکہ خدام کو کہتے کہ وہ ضرورت کے مطابق مسلی کے نیچے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لے۔ خلیفہ وقت نے آپ اللہ کی خدمت میں خلت فاخرہ بھیجی تو آپ یہ نے خدام کو حکم دیا کہ اسے ابل چکی والے دے دو۔ آپ کے خادم حضرت شیخ عبداللطیف بن شیخ ابی نجات یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اللہ کے ذمہ کچھ قرض واجب الادا ہو گیا۔ اس دوران ایک شخص آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ شخص بغیر کسی اجازت کے آپ اللہ کے سامنے بیٹھ گیا اور طویل گفتگو فرماتا رہا۔ پھر اس نے کچھ سونا نکالا اور آپ میل کو دے کر غائب ہو گیا۔ آپ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اس سونے کو قرض خواہوں میں تقسیم فرما دو۔ میں نے آپ پیلے سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ صرف قدر تھا، اور صرف قدر اللہ عز و جل کے وہ فرشتے ہیں جو اولیاء اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو عبد اللہ محمد بن ابوفتح البردی سید جو کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے پہلے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم وہ مجھے ہمیشہ محمد طویل کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی مجھے محمد طویل کہتے ہیں جبکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں۔ آپ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم طویل العمر اور طویل الاصفار ہوگے۔ حضرت شیخ ابو عبد اللہ محمد نے طویل عمر پائی اور 137 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ نے دور دراز علاقوں کا سفر بھی کیا تھا، یہاں تک کہ آپ پر کوقاف تک بھی گئے تھے۔ حضرت ابوالمعالی احمد بن مظفر بن یونس بغدادی حنبلی یہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بیٹا محمد 15 ماہ سے بیمار ہے اور اس کا بخار کسی بھی لمحے کم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم گھر جا کر اس کے کان میں کہو، اے ام العدم، تجھے عبد القادر اللہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر حلہ میں چلی جا۔ چنانچہ حضرت ابوالمعالی احمد اللہ نے ایسا ہی کیا اور ان کا بیٹا تندرست ہو گیا اور اس کے بعد اسے پھر کبھی بخار نہ ہوا۔ مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو تندرست کر دیتے۔
حضرت ابو محمد رجب بن ابی منصور داری بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الحسن علی قرشیپی نے انہیں بتایا کہ میں اور حضرت علی بن ابی نصر علیہ ہے حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں موجود تھے کہ ایک بغدادی تاجر حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی، آپ جو اللہ کے جد امجد حضور نبی کریم سے علم کا فرمان ہے کہ دعوت کو قبول کرو، پس میں آپ ماں کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم اللہ نے قدر توقف کے بعد اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ پھر آپ پر خچر پر سوار ہوئے۔ حضرت شیخ علی اللہ نے دائیں رکاب کو تھام لیا اور میں نے بائیں رکاب کو پکڑ لیا۔ جب ہم اس تاجر کے گھر پہ پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بغداد شریف کے تمام نامور علماء و مشائخ جمع تھے۔ اس تاجر نے ایک دسترخوان بچھا رکھا تھا جس پر مختلف انواع کے کھانے موجود تھے۔ اس دوران ایک مشکل لایا گیا ہے، کچھ لوگوں نے مل کر اٹھا رکھا تھا۔ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا اور آپ وہ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ اہلیہ نے کسی کو بھی کھانے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی نماز کے لیے جانے دیا۔ 6 دیر بعد آپ مرے نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور حکم دیا کہ اس مسئلے کو کھول دو۔ اس مسئلے کو کھولا گیا تو اس میں سے اس تاجر کا ایک اندھا اور مفلوج لڑکا نکلا۔ میں نے اس لڑکے کو حکم دیا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے تندرست ہو جا۔ حضور غوث اعظم پی کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا تندرست ہو گیا اور ایسے دوڑنے لگا جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام حاضرین میں مشہور برپا ہو گیا۔ آپ یہ لوگوں کی اس بے خبری کو اس بے خبری کو دیکھتے ہوئے وہاں سے کھانا کھائے بغیر نکل آئے۔ میں نے حضرت شیخ ابو سعید قیلوی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے سارا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو تندرست کر دیتے ہیں اور مردوں کو بھی اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں موجود تھا کہ اس دوران رافضیوں کا ایک گروہ 2 ٹوکرے لایا جو بند تھے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ ان ٹوکروں میں کیا ہے؟ آپ یہ اپنی مسند سے نیچے تشریف لائے اور ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اسے کھولو۔ جب اس ٹوکرے کو کھولا گیا تو اس میں ایک بیمار لڑکا موجود تھا۔ آپ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ٹھیک ہو جا۔ آپ پہلے کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا اٹھ کر دوڑنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک تندرست لڑکا موجود ہے۔ پھر جب اس دوسرے ٹوکرے کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک تندرست لڑکا برآمد ہوا۔ رافضیوں نے جب آپ ماں کی اس کرامت کو دیکھا تو معافی کے خواستگار ہوئے، کیا تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہ تھی؟ حضرت شیخ محمد بن خضر بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم اللہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے حضرت شیخ احمد رفاعی کی زیارت کرنی چاہیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، اے خضر، میں تمہیں شیخ احمد رفاعی اللہ کی زیارت کرواتا ہوں۔ پھر جب میں نے حضور سیدنا غوث اعظم اللہ کے حکم پر ان کی آستین کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے حضرت شیخ احمد رفاعی یہ نظر آئے۔ انہوں نے مجھے سے فرمایا، اے خضر دال، جو شخص شہنشاہ اولیاء ہیں، تم ان کی زیارت کرنے کے بعد میری زیارت کیوں کرنا چاہتے ہوں جبکہ میں بھی ان کی رعایا ہوں؟ یہ فرما کر حضرت شیخ احمد رفاعی وسیلہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے حضور سیدنا غوث اعظم وسیلے سے رخصتی کی اجازت کی اور واپسی پر حضرت شیخ احمد رفاعی مسئلہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے وہی شکل و صورت دیکھی جو میں نے حضور سیدنا غوث اعظم پیلے کے آستین میں دیکھی تھی۔ حضرت شیخ احمد رفاعی پر یہ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، نے خضر، کیا تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہ تھی؟ بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد الجونی یہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقہ سے تھا اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ والے نے میری ولی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اے جونی، بے بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ قلبی کیفیت سے آگاہ ہونا۔ حضرت شیخ زین الدین علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرا ایک دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو نہ جانتے تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں نے سیر نہ ہو سکے
और न ही हमें कोई लुत्फ महसूस हुआ। बाद अज़ां हम हुजूर सीदना गौस आज़म बरी की महफिल में हाजिर हुए तो आपका कुछ कलाम फरमा रहे थे। हमें देखते हैं आपने अपना कलाम कत कर लिया और फरमाने लगे, हिजाज मुक़द्दस से कुछ मेहमान आए और उनके पास कब्ज़ा कमान के सिवा कुछ न था, जिसे इन्होंने फ़रोख्त करके चावल खरीदे और इन्हें पका कर खाया, लेकिन वो न ही सैर हुए और न ही लुत्फ़अंदोज़। हज़रत शेख ज़ैनुद्दीन अलैहि फरमाते हैं, हमने जब हुजूर सीदना गौस आज़म री का ये कलाम सुना तो हम निहायत हैरान हुए। महफिल के इख्तिताम पर आपने दस्तरखान बिछवाया। मैंने आहिस्तगी से अपने दोस्त से इसकी पसंदीदा चीज़ के मुतालिक पूछा तो इसने कहा कि वो हलवा खाना चाहता है, और मेरे दिल में उस वक्त शहद की ख्वाहिश पैदा हुई। अभी ये सब हमारे दिलों में ही था कि हुजूर सीदना गौस आज़म बरी ने अपने खादिमीन को हुक्म दिया कि जाओ हलवा और शहद ले आओ। खादिमीन ने हुक्म की तमील की और हलवा और शहद हमारे सामने ला कर रख दिया। आप ये का इस तरह हमारे दिलों की बात पर मतला होने से हम हैरान रह गए। औनटनी पर हाथ फेरा तो वो भागने लगी। हज़रत अब्बू हिफ्स उमर बिन सालेह बगदादी ने एक मर्तबा अपनी औनटनी को हानकते हुए हुजूर सीदना गौस आज़म की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि हुजूर, मैं हज के लिए बीतल्लाह शरीफ जाना चाहता हूँ, मगर मेरी ये औनटनी मेरा साथ देने के काबिल नहीं है और फ़िलहाल मेरे पास कोई दूसरी सवारी भी नहीं। आपला ने इस औनटनी की पुश्त पर हाथ फेरा। इसके बाद हज़रत अब्बू हिफ्स उमर बिन सालेह बगदादी मियाँ ने इस औनटनी को एड़ी लगाई तो वो औनटनी बीतल्लाह शरीफ तक भागती ही गई और कोई दूसरी सवारी इसके नज़दीक न आ सकी। तुम अनकरीब बादशाहों के दस्तरखान पर बैठोगे। हज़रत अब्बू अलहजर हामिद अलहरानी फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा बगदाद शरीफ में हुजूर सीदना गौस आज़म की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना मसली आप अल्लाह के नज़दीक बिछा कर बैठ गया। आप अल्लाह ने मुझसे फरमाया, ए हामिद, तुम अनकरीब बादशाहों के दस्तरखान पर बैठोगे। चुनांचे जब मैं हरान वापस पहुंचा तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुझे अपने पास रहने पर मजबूर कर दिया और मुझे अपना मुसाहब खास बनाकर नाजिम औकाफ मुकर्रर फरमाया। दरख्तों पर फल लग गए। हज़रत शेख अब्बू अल मुज़फ़्फ़र इस्माइल रली से मनक़ूल है कि एक मर्तबा हज़रत शेख अल्लाह अली खाला वाओ बीमार हो गए। हुजूर सीदना गौस आज़म ये उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो आप अल्लाह ने उनके नज़दीक खजूर के 2 दरख्त देखे जो 4 साल से खुश्क थे और इन पर फल नहीं आता था। आप मैंने उन दरख्तों के नीचे बैठकर वज़ू किया और 2 रकत नमाज अदा फरमाई। कुछ दिन गुजरने के बाद उन दरख्तों पर फल लग गए और वो दोबारा से सरसब्ज़ व शादाब हो गए। लोगों के दिल आप अल्लाह की रहमत मुट्ठी में थे। जोली को मरी फिर 2 वरना कहे गी दुनिया ऐसे कई का मंगता फिरता है मारा मारा। मौलाना अबद अर्रहमान जामी ये फरमाते हैं कि हुजूर सीदना गौस आज़म री का एक मुरीद आप अल्लाह के हमराह मस्जिद की जानिब जा रहा था। जुमा का दिन था। उस दिन किसी भी शख्स ने आप ही को देखकर न सलाम किया और न ही कुछ तवज्जो फरमाई। इस मुरीद के दिल में ख्याल आया कि पहले तो आप ये जुमा की नमाज की अदायगी के लिए बड़ी मुश्किल से लोगों के हुजूम में से होते हुए मस्जिद की जानिब तशरीफ ले जाते थे, और कजा आज कोई शख्स भी आप ही को न सलाम कर रहा है और न आप वाली के नज़दीक तशरीफ ला रहा है। मौलाना अबद अर्रहमान जामी फरमाते हैं, अभी ये ख्याल इस मुरीद के दिल में ही था कि हुजूर सीदना गौस आज़म ये ने मुस्कुराकर इस मुरीद को देखा और फिर लोगों का एक जम गफीर इकट्ठा हो गया और हर कोई आपसे सलाम करने का ख्वाहिशमंद था। यहाँ तक कि इस मुरीद और आप अल्लाह के दरमियान हुजूम हायल हो गया। इस मुरीद के दिल में ये ख्याल आया कि पहला हाल अच्छा था जब मैं और आप ये तन्हा थे। मौलाना अबद अर्रहमान जामी ये फरमाते हैं, हुजूर सीदना गौस आज़म ने एक मर्तबा फिर इस मुरीद की दिली कैफियत को भानपते हुए फरमाया, दो तुम्हें मालूम नहीं लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है। मैं इन्हें चाहूँ तो फिर दून चाहूँ तो अपनी जानिब इन्हें मुतवज्जह कर लूँ। जो चाहेगा खाएगा। एक मर्तबा एक औरत हुजूर सीदना गौस आज़म की खिदमत में अपने बेटे को लेकर हाजिर हुई और अर्ज किया कि मेरे इस बेटे को आपसे दिल्ली लगाव है। आप वो उसे अपनी गुलामी में कबूल फरमाने में अल्लाह इस वजल और आप अल्लाह की खातिर अपने बेटे पर अपने हक को मुआफ़ करती हूँ। आप माँ अल्लाह ने इस लड़के को कबूल फरमा लिया। चंद रोज़ बाद वो औरत अपने बेटे से मिलने के लिए आई तो वो लड़का आप अल्लाह के हुक्म से मुजाहिदात में मशगूल था और बेहद लागर हो चुका था। इस औरत ने जब आपको देखा तो आप अल्लाह उस वक्त मुर्गी का गोश्त खा रहे थे।
और आप माँ के सामने हड्डियां पड़ी हुई थीं। इस औरत ने आप अल्लाह से कहा कि आपकी ये खुद तो मुर्गी खाते हैं, जबकि मेरा बेटा सख्त मुजाहिदात में मशगूल है। आपने इस औरत की बात सुनने के बाद हड्डियों की जानिब इशारा किया और हुक्म दिया कि अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से जिंदा हो जाओ। आप ही का ये फरमाना था कि इन हड्डियों से एक सालिम मुर्गी जिंदा खड़ी हो गई। आपने फरमाया कि जब तेरा बेटा इस मंजिल पर पहुंच जाएगा तो फिर जो चाहेगा खाएगा। मनकूल है कि एक मर्तबा हुजूर सीदना गौस आजम बुरी को अल्लाह अज़्ज़वजल की जानिब से हुक्म हुआ कि 700 मर्दों और 700 औरतों को वासिल बालला करें। आपने अल्लाह अज़्ज़वजल के इस फरमान के मुताबिक मजमा आम में नजर दौड़ाई तो मजमा में से 700 मर्द और 700 औरतें अलहदा हो गईं। आपने उन पर निगाह वलायत डाली तो वो सब वासिल बालला हो गए। चोर को कुतुब बना दिया। हुजूर सीदना गौस आजम बर मदीना मुनव्वरा में हुजूर नबी करीम से काम के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी देने के बाद बाप्यादा बगदाद शरीफ वापस तशरीफ ला रहे थे कि रास्ता में एक चोर जो कि नाका लगाकर किसी मुसाफिर का इंतजार कर रहा था, उसने आप अल्लाह को करीब आने पर रोक लिया। आपने इस चोर से दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो। इसने कहा कि मैं देहाती हूँ। आपको बजरिया कशिफ इसकी बदनीयती की खबर हो गई। इस दौरान इस चोर के दिल में भी ये ख्याल पैदा हुआ कि ये गौस आजम होंगे। आप अल्लाह ने उसके दिल की बात को कोभा भानते चलते हुए वो फरमाया कि मैं अबद अलकादिर अलकाद। चोर ने जब आपको अल्लाह की बात सुनी तो फौरन कदमों में गिर पड़ा और माफी का खास्तगार हुआ। आपको इसकी हालत पर तरस आ गया। आपने अल्लाह इस वाओ जल के हुजूर इसके लिए दुआ फरमाई तो नदायगी भी सुनाई दी। ए गौस, इस चोर को सीधा रास्ते दिखाते हुए आप अल्लाह ने इस चोर की जानिब नजर फरमाई है। वो चोर आप होने के फैज रूहानी से कुतुब के दर्जा पर फाइज हो गया। हजरत शेख अब्बू अल अब्बास खिजर बिन अब्दुल्ला बिन यहिया हुसैनी अल्लाह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने खलीफा अबुल मुज़फ़्फ़र यूसुफ अब्बासी को हुजूर सीदना गौस आजम बीनी की अल्लाह खिदमत में मौजूद पाया। इसने आप ये से किसी करामत को देखने की दरख्वास्त की और कहा कि इससे मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा। हुजूर सीदना गौस आजम हजरत सीदना अबद अलकादिर जिलानी ने खलीफा से पूछा कि तो क्या चाहता है। इसने कहा कि एक सेब, और उस वक्त इराक में सीबों का मौसम न था। आप में अल्लाह ने अपना दस्त मुबारक फिजा में बुलंद किया और देखते ही देखते आपको अल्लाह के हाथ में 2 सेब आ गए। आपको अल्लाह ने एक सेब अब्बू अल मुज़फ़्फ़र को दे दिया और दूसरा सेब खुद रख लिया। अब्बू अल मुज़फ़्फ़र ने जब अपना सेब चढ़ा तो इसमें से कड़ा निकल आया। आप मियाँ ने जब अपना सेब चढ़ा तो ये अंदर से सफ़ेद था और इसमें से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। अब्बू अल मुज़फ़्फ़र ने वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया कि इस सेब में से कपड़ा इस वजह से निकला क्योंकि इस सेब को जालिम का हाथ लगा है। हजरत शेख अब्बू मोहम्मद मोहल्ली से मरुए है कि एक मर्तबा में हुजूर सीदना गौस आजम की खिदमत अक़दस में बगदाद शरीफ हाजिर हुआ और कुछ दिनों तक है मन अल्लाह आपके क़याम पजीर रहा और रूहानी फीवस व बरकत से माला माल हुआ। बाद अज़ां जब मैं वापस अपने मुल्क मिस्र रवाना होने लगा तो आप बिल्ली ने मुझसे फरमाया कि कभी किसी से कोई चीज़ ना मांगना। फिर आप अल्लाह ने अपनी अंगुश्त शहादत मेरे मुंह में डाली और फरमाया कि उसे अच्छी तरह चौसू। चुनांचे मैंने आपको अल्लाह के फरमान के मुताबिक ऐसा ही किया और जब मैं आप अल्लाह से इजाज़त लेने के बाद वापस अपने मुल्क मिस्र रवाना हुआ तो बगदाद शरीफ से मिस्र तक की तवील मुसाफत के दौरान मुझे कुछ भूख महसूस न हुई और जून जून में आगे बढ़ता जाता है जिस्म में तो अपनाई को पहले से ज्यादा पाता। अंगुश्त शहादत रोशन हो गई। कलाइद अल जवाहिर में मनकूल है कि एक मर्तबा हुजूर सीदना गौस आज़म हजरत सीदना अबद अलकादिर जिलानी अलैहि, हजरत शेख अहमद रफ़ाई और हजरत एदीब बिन मुसाफिर बीन अहमद के हमराह हजरत इमाम अहमद बिन हबल पर अल्लाह के मज़ार पाक की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले गए। रात का वक्त था और अंधेरा बहुत ज्यादा था। आपको अल्लाह सबसे आगे थे और आपको अल्लाह ने अपनी अंगुश्त शहादत बुलंद की तो वो रोशन हो गई जिसकी रोशनी में आप सब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल बल के मज़ार पाक तक पहुँचे। हजरत शेख हमाद बिन मुस्लिम वबा सल्लाह के मरीदियन ने गुस्ताखी की माफ़ी मांगी। कुतुब सैर में मनकूल है कि हुजूर सीदना गौस आजम बर 27 ज़ीहिज्जा 529 बरोज़ चहर शंब मुकाबिर शुतेज़िए बगदाद में जानिब अरब सलह का कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। आप अल्लाह के हमराह उलमा व फ़ुक़रा की एक बड़ी जमात भी थी। आप अल्लाह हजरत शेख हमाद बिन मुस्लिम दबास की कब्र मुबारक पर तशरीफ ले गए।
और काफी देर तक वहां खड़े रहे। शदीद गर्मी का मौसम था। आप पर अल्लाह के हमराह आए हुए तमाम लोग जो कि आप अल्लाह के पीछे खड़े थे, गर्मी से निढाल होने लगे। काफी देर कयाम करने के बाद जब आप वो मुड़े तो आपके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी। लोगों ने वजह दरियाफ्त की तो आप ये ने फरमाया कि 15 शबान 499 पर रोज जुमा में हजरत शेख हमाद बिन मुस्लिम दबासरवी और उनके मरीदों के हमराह निकला था कि हम नमाज जुमा जामा रसाफा में अदा करें। जब हम दरिया पर पहुंचे तो हजरत शेख हमाद बिन मुस्लिम वबास हो अल्लाह ने मुझे दरिया में धक्का दे दिया। सर्दियों के दिन थे। मैंने हम अल्लाह शरीफ पढ़कर गुस्ल जुमा की नियत कर ली। इस वक्त मैंने सूफ का जिबा पहन रखा था और मेरे पास एक किताब के कुछ और आप मौजूद थे। इन और आपको मैंने दाएं हाथ में थाम लिया ताकि वो गीले ना हो जाएं। हजरत शेख और उनके मरीदन मुझे इस हालत में छोड़कर आगे बढ़ गए। मैं दरिया से निकला और पानी से भीगे हुए जिबा को निचोड़ा और उनके पीछे हो लिया। सर्दी की वजह से मेरे जिस्म पर कपकपी तारी थी। हजरत शेख के मरीदन ने मेरी मदद करनी चाहिए तो आप अलैहि ने इन्हें झड़क दिया और कहा कि मैंने उसकी आजमाइश के लिए इसे अजियत दी, मगर ये पहाड़ की मानिंद है, ये अपनी जगह से नहीं हिला। आज जब मैं हजरत शेख की कब्र पर आया तो मैंने देखा कि आपके आप अल्लाह के सर मुबारक पर याकूत का ताज है और हाथों में सोने के कंगन हैं, पाँव में सोने का पोश है, मगर आप पूरी का दाल आपको का दाहना हाथ साकत है। मैंने वजह पूछी तो आपने फरमाया कि मैंने इस हाथ से तुम्हें धक्का दिया था, तुम मुझे मुआफ कर दो। मैंने हजरत शेख के हक में दुआए खैर की और 5000 औलिया अल्लाह बेंच ने अपनी अपनी कबूर से आमीन कहा। अल्लाह अज़्ज़वजल ने हजरत शेख के हाथ को तंदुरुस्त कर दिया। उसी वजह से मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ाई। हुजूर सीदना गौस आज़म माँ जब अपने असहाब के हमराह बगदाद अल्लाह के हमराह बगदाद शरीफ वापस पहुंचे तो शहर में इस बात का शोर मच गया। हजरत शेख हमाद बिन मुस्लिम दबास अल्लाह के मरीदन इकट्ठे होकर आपके पास आ गए ताकि आपसे इस बात का सबूत तलब करें। जब वो आपके पास पहुंचे तो वहीद की वजह से कुछ ना पूछ सके। आप ये उनके आने का मकसद जान चुके थे। आप अल्लाह ने इनसे कहा कि तुम 2 मशाइख का इंतखाब कर लो, वो तुम्हें मेरे कौल की सदाकत का यकीन दिलाएंगे। इन्होंने हजरत शेख अब्बू याकूब यूसुफ बिन अयूब बिन यूसुफ हमदानी को, जो कि बगदाद में नौवारिद थे, और हजरत शेख अब्बू मोहम्मद अबद अर्रहमान मलाला को, जो कि बगदाद के रहायशी थे, उनका इंतखाब किया। ये दोनों बुजुर्ग साहब कशिफ वाव करामत थे। ये दोनों बुजुर्ग उस वक्त मौजूद न थे। हजरत शेख हमाद बिन मुस्लिम वबास है के मरीदन ने आइंदा जुमा तक का वक्त देते हुए कहा कि हम आइंदा जुमा तशरीफ लाएंगे। आप अल्लाह ने इन्हें बैठने का इशारा किया और अपने सर मुबारक को झुका लिया। कुछ देर बाद हजरत शेख यूसुफ नंगे पांव दौड़ते हुए तशरीफ लाए और कहने लगे कि शेख हमाद बिन मुस्लिम दबास फरमाते हैं कि हुजूर सीदना गौस आजम ये दुरुस्त फरमाते हैं और इन्होंने मेरे मुतालिक तुम्हें जो खबर दी है वो दुरुस्त है। अभी वो अपनी बात कर ही रहे थे कि हजरत शेख अबद अर्रहमान अल्लाह भी दौड़ते हुए तशरीफ लाए और इन्होंने भी इस बात को बयान किया। इन दोनों हजरात की बातें सुनकर हजरत शेख हमाद बिन मुस्लिम दबास के मरीदन ने आप वाले से अपनी गुस्ताखी की माफ़ी मांगी। बेटे की बशारत। हुजूर सीदना गौस आजम के साहिबजादे हजरत सीदना अब्दुल वहाब फरमाते हैं कि एक मर्तबा वालिद बुजुर्गों सख्त अलील हो गए और यूं महसूस होता था कि आप ये इस जहान फानी से कोच फरमा जाए गए। हम सब आप अल्लाह के गर्द जुमा हो गए और निहायत आबेदीदा थे। आपने फरमाया भी मुझे मौत नहीं आएगी क्योंकि मेरी पुश्त से बेची नाम का एक लड़का पैदा होगा। चुनांचे कुछ अरसा बाद आप भी के फरमान के मुताबिक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम बेटी रखा गया। इस वाकया के बाद अरसा दराज तक आप जिंदा रहे। असर रोशन हो गया। हजरत शेख अबद उल मलिक जियाल से मनकूल है कि मैं एक मर्तबा हुजूर सीदना गौस आजम के मदरसा में खड़ा था। आप अल्लाह अपने अपने दौलत खाने से निकले और आप अल्लाह के हाथ मुबारक में ऐसा था। मेरे दिल में अचानक ये ख्याल आया कि आप ये मुझे वो करामत दिखाएं जो इस असा में है। आपने मेरी दिल्ली कैफियत को भान पर लिया और मुस्कुराते हुए अपने असा को जमीन पर गाड़ दिया। आप मन अल्लाह का असा को जमीन पर गाड़ना था कि वो रोशन हो गया और इसकी रोशनी आसमान तक फैल रही थी। मैं इस मंजर को महू होकर देखता रहा। कुछ देर बाद आपको अल्लाह ने इस असा को जमीन से निकाला और मुझे मुखातब करते हुए फरमाया, जियाल तुम यही देखना चाहते थे, अनाज में बरकत।
हज़रत शेख अब्बू अल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद बिन अहमद, ये जो हुजूर सीदना गौस आज़म के हमसाया में रहते थे, इन्होंने एक मर्तबा बगदाद में कहत के दौरान आप की खिदमत में हाजिर होकर शिकायत की। आप अल्लाह ने चूमी मर गंदुम ना उमद गंदुम निकाल कर इन्हें दिए और फरमाया कि उसे एक ज़रूफ में बंद कर दो और इस ज़रूफ के पहलू में सुराख करके इसमें से निकाल कर पीस लिया करो। हज़रत शेख अब्बू अल अब्बास ये फरमाते हैं, हमने ऐसा ही किया और इस ज़रूफ में से 5 साल तक गंदुम निकाल कर खाते रहे। एक रोज़ मैंने और मेरी बीवी ने इस ज़रूफ को खोल कर देखा तो इसमें चूही का गंदुम ही मौजूद थी, जितनी आप अल्लाह ने हमें अता फरमाई थी। इस वाक़े के 7 रोज़ बाद वो गंदुम ख़त्म हो गई। मैंने इसका जिक्र आपसे किया तो आपने फरमाया कि अगर तुम इसको ना खोलते तो तुम सारी ज़िंदगी इसमें से खाते रहते। आँख और अक़ल के अंधे हज़रत शेख खलका अकमरी ये फरमाते हैं कि एक मर्तबा में हुजूर सीदना गौस आज़म पर की महफिल के पास से गुजरा तो मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना आज इस उजमी का कलाम सुना जाए। इससे पहले मुझे कभी आपका कलाम सुनने का इत्तिफाक न हुआ था। जब मैं आपकी मजलिस में दाखिल हुआ तो आप रवि ने मुझे देखते ही फरमाया, ऐ आँख और अक़ल के अंधे, तो इस उजमी का कलाम सुन कर क्या करेगा। आप अल्लाह की ये बात सुनकर मुझ पर रक़त तारी हो गई और मैंने आप लिया के मिंबर के नज़दीक जाकर अर्ज़ किया कि मुझे खरका पहनाएं। आपने मुझे खरका पहनाया और फरमाया, अगर अल्लाह इस वजल मुझे तुम्हारी आक़बत की इत्तला ना देता तो अपने गुनाहों की वजह से हलाक हो जाता। हज़रत खिज़र अमीनी से मरुए है कि हुजूर सीदना गौस आज़म या अल्लाह ने एक मर्तबा मुझे मुखातब करते हुए फरमाया, दाल तुम मुवस्सिल चले जाओ, वहाँ तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। जब वो बच्चा 7 साल का हो जाएगा तो बगदाद का एक अली नामी नाबीना शख्स इसे 6 माह में कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाएगा और तुम 94 साल 6 माह और 7 दिन की उम्र में अरील शहर में विसाल पाओगे और बोकत विसाल तुम्हारे तमाम आज़ा समात वाओ बसारत सब सही दुरुस्त होंगे। हज़रत खिज़र अमीनी अलैहि फरमाते हैं, मैं आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुवस्सिल चला गया। मुवस्सिल में क़याम के कुछ अरसा बाद मेरे यहाँ अब्बू अबद अल्लाह मोहम्मद मन अल्लाह दौलत हुए। अब्बू अबद अल्लाह मोहम्मद की उम्र जब 7 बरस हुई तो मैंने उसे एक जी हाफिज़ कुरान को मुकर्रर फरमाया जो नाबीना थे। मैंने जब उनका नाम दरियाफ्त किया तो इन्होंने अपना नाम अली बताया। मनकूल है कि बाद अज़ जब हज़रत खिज़र अमीनी ये का वक्त विसाल करीब आया तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 94 बरस 6 माह और 7 दिन थी और बोकत विसाल तमाम आज़ाम बसारत व समात बिल्कुल सही थे। रिवायात में आता है कि एक दिन हुजूर सीदना गौस आज़म या अल्लाह का गुज़र एक मोहल्ला से हुआ। इस मोहल्ला में एक ईसाई और मुसलमान के दरमियान इस बात पर झगड़ा हो रहा था कि ईसाई कहता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम से अफजल हैं, जबकि मुसलमान कहता था कि हुजूर नबी करीम से किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल हैं। हुजूर सीदना गौस आज़म पूरी ने ये सुनकर इस ईसाई से फरमाया कि तुम्हारे पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अफजल होने की क्या दलील है। इस ईसाई ने कहा कि वो मर्दों को जिंदा करते थे। आपने फरमाया कि मैं नबी नहीं हूँ बल्कि अपने नबी वाओ रसूल हुजूर नबी करीम लिए एक काम का अदनी सा गुलाम हूँ। अगर मैं मुर्दा को जिंदा कर दूं तो क्या तुम हमारे नबी करीम ने काम पर ईमान ले आओगे। ईसाई ने हुजूर सीदना गौस आज़म की बात सुनने के बाद कहा कि मुझे मंजूर है। आपने दरियाफ्त किया कि क्या यहाँ कोई पुरानी कब्र मौजूद है। आपको एक पुरानी कब्र के पास ले जाया गया। आपने इस ईसाई से पूछा कि हज़रत ईसा अली नाम मुर्दा को जिंदा करते वक्त क्या फरमाते थे। इस ईसाई ने जवाब दिया कि हज़रत ईसा अलैहि फरमाते थे कि तुम बाज़न अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया ये साहब कब्र दुनिया में गोया था और अगर तो चाहे तो ये अपनी कब्र से गाता हुआ उठेगा। ईसाई ने जवाब दिया कि ये ठीक है। हुजूर सीदना गौस आज़मी ने कब्र की जानिब मुतवज्जह होकर फरमाया तुम बाज़न अल्लाह, बस कब्र शक हो गई और इसमें से मुर्दा गाता हुआ उठ खड़ा हुआ। ईसाई ने जब आप अल्लाह की ये करामत देखी तो उस वक्त आपके दसत हक पर कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दरियाए दजला पर मसला बिछाना। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सीदना गौस आज़म पर ये अरसा दराज तक अहल इराक़ की नज़रों से उजल रहे। लोगों ने आप अल्लाह की तलाश शुरू की तो मालूम हुआ कि आपको दरियाए दजला की जानिब जाते हुए देखा गया है। जब आप ये को तलाश करते हुए लोग दरियाए वजला के किनारे पहुंचे तो देखा कि आप ये पानी पर चलते हुए आ रहे हैं। इस दौरान मछलियां बकसरत आप विया की खिदमत में
हाजिर होकर सलाम अर्ज कर रही थीं। इस दौरान नमाज ज़हर का वक्त हो गया और एक सब्ज रंग का सोने व चांदी से मुज़य्यन मसली नजर आया जो कि तख्त सुलेमानी की मानिंद था, और वो मसली दरियाए दजला के ऊपर मुअल्लक हो गए। जब वो मसला बिछ गया तो बहुत से लोग आए और इस मसली के बराबर खड़े हो गए। उन लोगों के चेहरों से बहादुरी और शुजात जाहिर हो रही थी। सब लोग जो आप मिले की तलाश में आए थे, उनकी ज़बानें गिंगा हो चुकी थीं और उनकी आंखों से आंसू जारी थे। एक पर वक़ार शख्सियत ने आगे बढ़कर तकबीर कही और आपने नमाज की इमामत फरमाई। एक काफिर को मर्तबा अबदाल पर फाइज करना। मुल्क शाम में एक अबदाल का विसाल हो गया। हुजूर सीदना गौस आज़म में सरजमीन इराक से फौरन रूहानी तौर पर वहां तशरीफ ले गए। इस अबदाल के जनाजा में हजरत खिज़र अली नाम और दीगर अबदाल भी तशरीफ लाए। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आप हर ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि पसतनतनी में फलां का उनका फ़र को यहाँ लाएं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसका फ़र को पेश कर दिया। आप अल्लाह ने इसका फ़र को कलिमा पढ़ाकर मुसलमान किया और इसकी मूंछों को पस्त करवाया। आप अल्लाह ने अपनी एक ही नज़र करम से इस काफिर को अबदाल के मकाम पर फाइज फरमा दिया। आप अल्लाह ने तमाम अबदालों को मुखातब करते हुए फरमाया कि मैं इसे विसाल पाने वाले अबदाल के मकाम पर तैनात करता, जिस पर तमाम अबदालों ने अपने सर तस्लीम खम कर दिए। 70 घरों में इफ्तारी करना। हुजूर सीदना गौस आज़म रैली को एक मर्तबा रमज़ान उल मुबारक के दौरान 70 मुख्तलिफ लोगों ने इफ्तारी की दावत दी। आप मियाँ ने हर एक की दावत को कबूल फरमा लिया। दावत देने वाले अफराद को एक दूसरे की दावत का इल्म न था। आपको ये मुकर्ररा वक्त पर इन सब के घरों में तशरीफ ले गए और उनके साथ इफ्तारी फरमाई। इस दिन आप ये ने अपने आस्ताना पर भी इफ्तारी फरमाई। सुबह जब हर शख्स अपनी इस सादत की गुफ्तगू कर रहा था तो इन्हें मालूम हुआ कि आप ये ने हर घर में इफ्तारी की है। इस दौरान खुदाम आस्ताना आलिया भी आ गए और कहने लगे, आप अल्लाह ने हसब मामूल आस्ताना आलिया पर ही कल इफ्तारी फरमाई थी। जब आपकी खिदमत में इस बात को बयान किया गया तो आप अल्लाह ने फरमाया कि तमाम लोग अपने कौल में बचे हैं और मैंने हर एक की दावत कबूल की और हर एक घर जाकर उनके साथ इफ्तारी फरमाई। जालिम काजी को मजूल करवाना। मनकूल है कि खलीफा वक्त ने जब अबुलविफा यहीद बिन सईद जो कि इब्न अल-मज़ाहम जालिम के नाम से मशहूर था को काजी के उहदा पर तैनात किया, हुजूर सीदना गौस आज़म मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और खलीफा को मुखातब करते हुए फरमाया कि तुमने एक जालिम शख्स को काजी मुकर्रर किया है। कल जब तुम अल्लाह इस वजल की बारगाह में हाजिर होगे तो उस वक्त क्या जवाब दोगे। खलीफा को जब आप अल्लाह के इस खिताब की खबर हुई तो वो काम उठा और रोना शुरू कर दिया। अलिफ सीन ने फौरा अब्बू अलूफा बीनी को काजी अल-क़ज़ा के उहदा से मजूल कर दिया। खलीफा का नजरान कबूल ना किया। हजरत शेख अब्बू अल-अब्बास खिज़र अल-हुसैन अल-मौसली अलैहि फरमाते हैं कि एक रात अबुल-आहम हुजूर सीदना गौस आज़म की खिदमत में हाजिर थे कि खलीफा वक्त हाजिर हुआ और आपकी खिदमत में सलाम करने के बाद मुअद्दब होकर बैठ गया। इसने आप ये की खिदमत में 10 थैलियाँ दिनारों से भरी हुई पेश करना चाहिए, लेकिन आपने इन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया। जब खलीफा का इसरार ज्यादा हुआ तो आपने उनमें से 2 थैलियों को पकड़कर नचोड़ा जिसमें खून टपकना शुरू हो गया। आप अल्लाह ने खलीफा से फरमाया कि तुम लोगों का खून नचोड़ कर मेरे पास लाए हो। आपकी बात सुनकर खलीफा बेहोश हो गया। आप अल्लाह ने फरमाया कि अगर मुझे खलीफा के और रसूल अल्लाह से आम होने की इज्जत ना होती तो मैं इस खून को इसके महलों की जानिब बहा देता। हजरत शेख अबुल कासिम बाजार और अब्बू हिफ्सौम की आती पेन से मनकूल है कि हुजूर रहमतुल्लाह मुझे सीदना गौस आज़म ये हवा में चला करते थे और फरमाते थे कि सूरज जब तक सलाम ना करे नहीं निकलता और हर साल मेरे पास आकर मुझे सलाम करता है और बताता है कि मुझ में फलां फलां वाक़यात होंगे। उसी तरह महीना, हफ्ता और दिन मुझे सलाम करते हैं और बताते हैं कि हमें फलां फलां अमर वक़ू पज़ीर होंगे। मुझे अपने रब की कसम अलू महफूज में नेक वाव बद मेरी आँखों के सामने पेश किया जाता है। मीम यह मुशाहिदा खदांदे और इल्म खदांदी के समंदरों में गोताजन हूँ। मैं तुम सब पर हजरत अल्लाह हूँ। मैं रोए ज़मीन पर रसूल अल्लाह से काम का नायब वारिस हूँ। अमर रसूल अल्लाह से इल्म की मुखालफत का खौफ। शेख अल-मशाख हजरत अब्बू अल-कासिम खलफ बिन अय्याश शाफ़ी अल्लाह से मनकूल है, फरमाते हैं कि हजरत अब्बू उमर व उस्मान बिन इस्माइल ने
مجھے 905 دو چشمہ میں بغداد بھیجا تھا کہ میں ان کے لیے حضرت امام احمد بن قبل کی کتاب مسند امام احمد کا نسخہ لاؤں۔ جب میں بغداد شریف آیا تو میں نے لوگوں کو حضور سیدنا غوث اعظم بری کی جانب مائل دیکھا اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ جو کہتے وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ دفتہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اگر میرے دل کی بات بتا دیں تو میں ان کی ولایت کا قائل ہو جاؤں گا، چنانچہ میں نے خلاف عادت بات سوچی کہ جب میں ان کے پاس جاؤں اور سلام کروں تو یہ میرے سلام کا جواب نہ دیں اور مجھ سے منہ پھیر کر اپنے خادم سے کہیں کہ اس آنے والے کے لیے ایک چھوہارے کا ٹکڑا اور شہد کا ایک دان لاؤ، اور جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو آپ یہ مجھے کلا پہنائیں اور میر نے سلام کا جواب دیں۔ حضرت ابو القاسم خلف بن عیاش شافعی یہ فرماتے ہیں، یہ سب دل میں سوچنے کے بعد میں ان کے پاس جا پہنچا۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے میرے سلام کا جواب دینے کی بجائے منہ پھیر لیا اور اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ چھوہارے کا ٹکڑا اور شہد کا ایک دان لاؤ جو نہ دانہ بھر زیادہ ہو نہ کم ہو۔ اس وجل کی قسم آپ علیہ نے وہی الفاظ دہرائے جو میرے دل میں تھے۔ پھر جب خادم وہ چیزیں لے آیا تو آپ کو اللہ نے انہیں میرے سامنے پیش کیا اور مجھے کلا پہنانے کے بعد میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے خلف تو یہی چاہتا تھا۔ حضرت ابو القاسم خلف بن عیاش شافعی یہ فرماتے ہیں، میں دل سے آپ اللہ کی عظمت کا قائل ہو گیا اور آقا قائل ہو گیا اور آپ کی خدمت میں رہ کر احادیث کا علم حاصل کیا۔ حضرت شیخ ابو المظفر منصور بن المبارک الواسطی الوائزہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میں جوان تھا اور میرے پاس فلسفہ و علوم الروحانیت کی ایک کتاب تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، علی منصور یہ کتاب تیرا برا ساتھی ہے، اسے تو دے۔ حضرت شیخ ابو المظفر منصور بن المبارک الواسطی الوائزہ یہ فرماتے ہیں، مگر میرے دل نے اس کو دھو ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کتاب میں منقول چند مسائل مجھے بے حد مرغوب تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے سامنے سے اٹھوں اور اس کتاب کو گھر لے جاؤں۔ آپ نے میری جانب دیکھا اور مجھ سے اٹھا نہ گیا اور میری حالت قیدی کی سی ہو گئی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، کتاب دو۔ میں نے جب اسے کھولا تو وہ سفید کاغذ تھے جن پر کوئی حروف نہ لکھا ہوا تھا۔ آپ کو اللہ نے اس کتاب کی ورق گردانی شروع کر دی اور فرمایا، یہ کتاب فضائل قرآن ہے اور یہ محمد بن زریش یہ کی تصنیف ہے۔ حضرت شیخ ابو المظفر منصور بن المبارک الواسطی الوائزہ یہ فرماتے ہیں، پھر آپ نے وہ کتاب مجھے واپس فرما دی۔ میں نے جب اس کتاب کو دوبارہ دیکھا تو وہ واقعی فضائل قرآن کی کتاب تھی اور محمد بن زریش کی تصنیف تھی۔ آپ اللہ نے فرمایا، کیا تو توبہ کرتا ہے کہ اپنی زبان سے وہ بات کہے جو تیرے دل میں نہ ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ اس کے بعد مجھے فلسفہ و احکام الروحانی جو مجھے یاد تھے وہ بھول گئے اور میرے باطن سے ایسے محو ہوئے جیسے کبھی میرے ذہن میں آئے ہی نہ تھے۔ مردود مقبول ہو گیا۔ الف ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں ایک الف منقول ہے کہ اللہ ایک ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی۔ سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائے، لیکن اس کا نام لو محفوظ پر اشقیاء کی فہرست میں لکھ دیا گیا تھا۔ ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ اس شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ آپ اللہ نے فرمایا، واؤ تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے، مگر میں تمہیں اللہ اس واؤ جل کے اذن سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم علیہ نے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی، کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ تم سے قبل بھی 360 اولیاء اللہ اس کے لیے سفارش کر چکے ہیں، لیکن اس کا نام لو محفوظ پر اشقیاء کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ نے عرض کیا، یا الہی تو مردود کو مقبول اور مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔ اگر تیری منشا یہی ہے تو نے اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ غیبی ندا آئی، انا عبد القادر، اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، تم اسے جو چاہے بنا دو۔ چنانچہ آپ کی دعا ہے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو صالح بن ویرجان الزکالی وہ اللہ سے منقول ہے کہ حضرت شیخ مغربی بھی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم اللہ کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے میں دن تک الف نون تک اپنے خلوت خانہ کے دروازہ پر بٹھائے رکھا اور میں روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا تو آپ اللہ نے
فرمایا اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ جب میں نے اس جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین میلے کو دیکھ رہا ہوں۔ ایسی طرح کی ویڈیو اور واقعہ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آمین یا رب العالمین۔